Welcome to Evergreen Mechanical. Today we are going to solve this question from fluid mechanics only. But this question has been taken from SK Swam, one of the great book out there. And believe me, this book contains high quality questions which may come in gate exam, and definitely that type of questions references has been taken from this book. This is a very good book. If you want less questions but good quality questions, you can take this book and solve, right? So without wasting any time, let's start this question. Last lecture I have solved one question from gate 2018 based on this projectile motion and a tank. So similar question is there, but little bit advanced level from previous question. And second video, or you can say third lecture, which is coming on next video will be there. That will question is from Frank M. White. I don't think so. After that, there will be any question based on projectile motion plus fluid mechanics. You will not able to do. You can easily do this type of questions right now. Okay. So आप लोग एक बार पढ़िए क्वेश्चन को और ट्राई कीजिए सॉल्व करने का विथ द कॉन्सेप्ट्स आई हैव डिलीवर्ड इन लास्ट लेक्चर. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन. तो क्या बोला है? टू आइडेंटिकल ओरिफिस आर माउंटेड, एक मिनट, आर माउंटेड ऑन वन साइड ऑफ ए वर्टिकल टैंक. ठीक है, देखो क्या बोल रहा है. एक यहाँ पे एक ओरिफिस है और एक यहाँ पे एक ओरिफिस है. एक चीज इस क्वेश्चन में, एक चीज लिटिल बिट माइनर मिस्टेक है. माइनर मिस्टेक ये है कि ये जो जेट निकल रहा है ये ऐसा नहीं निकल रहा है. आई विल ड्रॉ इट फॉर यू एंड आई विल शो यू हाउ इट इज कमिंग. ठीक है, दिस इज ओरिफिस 1 और यहाँ पे एक है मेरा ओरिफिस 2. ये जेट जो है ऐसा निकल रहा है. दिस इज माई इंटरसेक्शन पॉइंट है. दिस इज द इंटरसेक्शन पॉइंट है. ठीक है, the problem in the figure is that it has given with an inclination. If the question has been given with an inclination, definitely they would have provided at an angle something theta, and no problem. अगर angle theta में भी दिया रहता तो भी हम लोग find करते. That's only I have taken this question in next lecture. I will take how the value will change when there will be at an angle theta. There will be two components then. In last lecture you have seen when it is like this, it is like this, there is only one component of velocity at initial velocity. What I want to say is ux, right? Initial velocity, whatever it will be having only one component of velocity. There will be no y component velocity out there, right, in both of the two orifices. Similarly, but if it has been there at an angle of theta, then definitely there will be velocity component like this. Then there will be two component of velocity, that is velocity of x and then velocity of y. Then it will be like v cos theta, and then here it will be like v sin theta. But in the figure there is not at all any mention of there is theta. That's why I am considering this figure is little bit, it is like this actually, right? So don't take this actual figure, but it is like this I have shown you, right? So coming back to the question, क्या बोला है? The height of the water above the upper orifice, you can consider this as an upper orifice u1 and this is lower orifice. The height of water मतलब इस अपर ओरिफिस से ये जो हाइट ऑफ वाटर है इसका हाइट कितना देके रखा है? 3 मीटर देके रखा है. इफ द जेट ऑफ वाटर फ्रॉम द टू ओरिफिस इंटरसेक्ट एट अ हॉरिजॉन्टल ऑफ डिस्टेंस ऑफ 8 मीटर फ्रॉम द टैंक, मतलब ये दोनों का जो जेट यहाँ से जो निकल रहा है और ये भी, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं 8 मीटर ऑफ द टैंक में इंटरसेक्ट कर रहे हैं. ठीक है, एस्टिमेट द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द टू ओरिफिस. पहला क्वेश्चन क्या पूछा है? एस्टिमेट द वर्टिकल डिस्टेंस पूछा है कि ये वाला
जो दो ऑरिफिस के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है। दूसरा पूछा है आपको कि कैलकुलेट द वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द जेट। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ है, ये वाला, यहाँ से जो वाटर का लेवल है टैंक में वो वाला हाइट पूछा है। तो डेफिनेटली यू विल लर्न लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम दिस टू क्वेश्चंस। तो लेट्स स्टार्ट दिस। तो मैं स्टार्ट ऐसे करेंगे कि वन बाय वन लेंगे, ठीक है। सॉल्विंग फॉर अपर ऑरिफिस फर्स्ट। ठीक है, यहाँ पे वाटर है, इस पॉइंट पे मेरा अपर ऑरिफिस है, वेलोसिटी ऐसा कुछ जा रहा है, ठीक है। और जो ये मेरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये 8 मीटर पे दे के रखा है, इसको मैं मान के चल रहा हूँ 8 मीटर पे, यहाँ पे मेरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ये जो हाइट है ये कितना है, 3 मीटर है, ठीक है। अब मैं क्या कोशिश कर रहा हूँ कि अगर अगर मेरे को ये वाला हाइट मिल गया जहां पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से लेके इसको h1 मान रहा हूँ, ये वाला जो ऑरिफिस का हाइट मिल गया, तो मैं टोटल हाइट बता सकता हूँ, टैंक का नहीं, जहां से मेरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो रहा है वहां से टॉप लेवल का हाइट मैं बता पाऊंगा। तो इसलिए मैं पहला ऑरिफिस को सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, इस पॉइंट पे मेरा वेलोसिटी, उससे भी पहले मैं आपको लास्ट लेक्चर में क्या बताया कि आपको पहले रेफरेंस ले लो। प्रोजेक्टाइल मोशन करने का ही सबसे बेस्ट तरीका है कि आप रेफरेंस ले लो, उसके बाद x2 x1 y2 y1 आप कंसिडर करो, वेलोसिटी उस पॉइंट पे निकालो, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, उस पॉइंट पे मेरा फाइनल वेलोसिटी की अगर नीड है तो आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो मैं x इसको मान रहा हूँ, इसको y मान रहा हूँ, दिस आर माई रेफरेंस पॉइंट। देन व्हाट आई एम डूइंग इज, मैं आपको एकदम ही क्लियरली लिख के दे रहा हूँ, ये वाला x और ये वाला y दोनों को मैं पॉजिटिव मान रहा हूँ, मतलब इस डायरेक्शन में अगर y जा रहा है तो पॉजिटिव है, इस डायरेक्शन राइट साइड में जा रहा है तो पॉजिटिव है x, ठीक है। अब x1 कितना है, x1 इज 0, y1 इज 0, इसको मैं रेफरेंस माना हूँ, x1 इज 0, y1 इज 0। व्हाट इज x2 कितना है, यहाँ से x2 कितना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तक 8 मीटर है। y2 कितना है, भाई y2 को आप h1 मत बोलो यार, h1 मत बोलो, क्योंकि ये 0 से मैं नीचे साइड आ रहा हूँ, समझ रहे हो, तो ये माइनस h1 है। u ऑफ x, इनिशियल वेलोसिटी क्या है एट पॉइंट 1, यहाँ पे मेरा इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इट विल बी रूट ऑफ 2g इंटू हाइट कितना है 3। अब आप ये मत पूछना कि ये कहाँ से आया, सी लास्ट लेक्चर यू विल गेट, आई हैव सॉल्व्ड, I have not brought like this, I have solved by Bernoulli's equation, applying Bernoulli's equation between one and this two, okay। Now अब मैं क्या करूंगा ना, मैं applying equation in x डायरेक्शन में मैं इक्वेशन अप्लाई कर रहा हूँ, तो क्या होगा, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी का होल स्क्वायर, ठीक है। s क्या है, मेरा डिस्प्लेसमेंट है, x2 माइनस x1 फाइनल माइनस इनिशियल, u इनिशियल वेलोसिटी कितना है, रूट ऑफ 6g, 2 3 जा 6g इंटू टाइम। क्या मेरा एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन पे है, नहीं, तो ये वाला टर्म हो गया 0। नाउ व्हाट इज टाइम, कितना हो गया, x2 माइनस x1 कितना है 8 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 6g। इसको सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि g हमको पता है, 8 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 6 इंटू 9.81 कितना हुआ, 1.0427 सेकेंड्स आ रहा है। इतना मेरा टाइम ऑफ फ्लाइट बता रहा है, मतलब जब यहाँ से जेट निकला और वो जब इंटरसेक्शन पॉइंट में पहुंच रहा है तो मेरा इतना टाइम लग रहा है। नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल अप्लाई सेम थिंग इन y डायरेक्शन, अप्लाइंग, आप देख रहे हो ना, जब मैं इक्वेशन इन y डायरेक्शन लगा रहा हूँ तो मैं y कंपोनेंट्स के जितने भी डेटा हैं उसको यूज कर रहा हूँ, जब मैं x में डायरेक्शन में लगा रहा हूँ तो x कंपोनेंट ऑफ डायरेक्शन डेटा है उसको यूज कर रहा हूँ। s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ
a ऑफ y इंटू टी का होल स्क्वायर, एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन, ये x क्या है, y2 माइनस y1 इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, राइट। पूरा जो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो x डायरेक्शन में निकल रहा है, देयर इज नथिंग लाइक दिस, इस कंपोनेंट ऑफ ऐसा कुछ नहीं निकल रहा है tan एंगल थीटा, तो मैं कंपोनेंट ले सकूं, ठीक है। तो इसलिए ये जीरो लिया, प्लस हाफ ऑफ एक्सेलरेशन क्या है y, ग्रेविटी है, ये माइनस जी आया इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। y2 कितना है, y2 कितना है, माइनस ऑफ h1 है, ये हो गया माइनस h1, y1 इज जीरो, और ये माइनस हाफ ऑफ g इंटू 1.0427 का होल स्क्वायर, तो ये कट गया, h1 कितना आ रहा है देख लेते हैं। इसलिए मैं कभी भी डायरेक्टली इसको सॉल्व नहीं करता, क्योंकि आप देखना t अगर t क्या है 6g है, t स्क्वायर क्या होगा 64/6g, तो g कट जाता, समझ रहे हो। मैं यहाँ सॉल्व कर दिया, बट अदरवाइज मैं कभी नहीं करता। 9.81 इंटू 1.0427 का होल स्क्वायर इंटू 0.5, ये आ रहा है आपका h1 आ रहा है 5.33 मीटर। इसका मतलब क्या है, ये वाला जो हाइट है, देखो मैं पहला ऑरिफिस के लिए कंसिडर किया था, आई वाज टॉकिंग अबाउट फर्स्ट ऑरिफिस, और ये वाला जो मेरा को पूरा हाइट है जहां से इंटरसेक्शन हुआ था, ये कितना मिला है मेरे को, दिस आई हैव गॉट इज 5.33 मीटर। अब क्वेश्चन में एक चीज पूछा है कि वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द जेट, ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द जेट फ्रॉम द वाटर लेवल इन द टैंक, ये वाला हाइट, तो आधा तक तो मेरे को पता था, ये तो 3 मीटर था, प्लस 5.33, तो ये जो h है ये कितना हो गया 8.33 मीटर, 8.33 मीटर, ठीक है। अब क्या बचा है, एक चीज आपको गौर करने की चीज है कि अज्यूमिंग सीवी कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी 1 करके दे के रखा है, तो ये जो आपका यूवी आया था यहाँ पे सीवी इंटू रूट ऑफ 2gh होता है, ठीक है, ये 1 है। सिमिलरली अब मेरे को क्या करना है, ये एक चीज आ गया, अब दूसरा चीज हमको क्या फाइंड करने बोला है उस पर बात करते हैं। अब क्या बोला है ना, ये तो मेरा एक ऑरिफिस था, ये मेरा दूसरा ऑरिफिस है, दूसरा ऑरिफिस ऐसा कुछ जा रहा है, पहला ऑरिफिस इस पॉइंट ऑफ मेरा इंटरसेक्शन था, ये 8 मीटर था, राइट, एक बार देख लेते हैं, 8 मीटर था, डेफिनेटली 8 मीटर था। और ये जो मेरा वाटर है इसका 3 मीटर था, ये वाला हाइट मेरे को मिल गया है 5.33, ये वाला जो हाइट है ये h, मुझे ये वाला डिस्टेंस चाहिए, ठीक है। अब हम सॉल्व करते हैं, एक काम करते हैं, अगेन सेम चीज है भाई, आपको क्या करना है, पहले रेफरेंस ले लो, स्टेप्स एकदम दिमाग में रखो, x y, ये रेफरेंस है मतलब 0 0 है, ठीक है, ये वाला x2 y2, राइट, ये x1 y1 है, तो मैं लिख देता हूँ x1 इज 0, y1 इज 0, x2 कितना है 8 मीटर, y2 कितना है, इसको ये वाले डिस्टेंस को मैं ना क्या लिख सकते हैं, 5.33 माइनस h लिख सकता हूँ, डेफिनेटली लिख सकते हो सर, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस। बट ये वाला जो डिस्टेंस रहेगा ये 0 से नीचे की तरफ आ रहा हूँ, तो ये नेगेटिव में रहेगा, ठीक है। और वेलोसिटी u ऑफ x, तो यार अब आपको तो ये तो पता है, रूट ऑफ cv 2g, बट मैं यहां से लूंगा, ये मत ले लेना भाई h, प्लीज, बर्नौलीस इक्वेशन लगाया हूं 1 और 2 में, यहाँ पे वाटर है, ये गलती मत करना यार प्लीज, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, अपन x डायरेक्शन में मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लगा रहा हूँ, s इक्वल टू ut हाफ ऑफ
gt का होल स्क्वायर आएगा, उसमें एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन जो है वो 0 है, इसलिए मैं वो नहीं लिख रहा। ये क्या होता है, x2 minus x1 इक्वल टू u of x into t। x2 minus x1 is 8, u of x कितना है, रूट ऑफ 2g इंटू 3 प्लस h इंटू t। तो यहाँ से जो मेरा टाइम ऑफ फ्लाइट आया है 8 अपॉन रूट ऑफ 2g इंटू 3 प्लस h है, इसको मैं इक्वेशन 1 मान के चल रहा हूँ। ठीक है, नाउ आई एम अप्लाइंग इक्वेशन ऑफ मोशन इन y डायरेक्शन। जब मैं y डायरेक्शन पे लगाऊंगा, ut प्लस हाफ ऑफ at का होल स्क्वायर, y डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है, y2 माइनस y1 कितना होगा, माइनस ऑफ 5.33 माइनस ऑफ h हुआ इक्वल टू माइनस ऑफ हाफ ऑफ g। माइनस ये कहाँ से आया, एक्सेलरेशन ऑफ y, ये पूरा नेगेटिव साइड में है इसलिए वो लिया इंटू g इंटू t का होल स्क्वायर। तो माइनस माइनस कट गया, आई एम राइटिंग हियर 5.33 माइनस ऑफ h इक्वल टू हाफ ऑफ g इंटू टी स्क्वायर कितना होगा, ये वाला t जो आपको इक्वेशन 1 से आया है 64 अपॉन स्क्वायर करोगे ना आप, इसका स्क्वायर 64 हुआ, ठीक है, ये स्क्वायर 2g 3 प्लस h हुआ, राइट। तो g कट गया 4 64 16 यार 5.33 इक्वल टू 16, क्योंकि 1/2 इंटू 2 था यहाँ पे, अरे यार 1/2 इंटू 2 4 हो गया, ये 4 16 16/3 प्लस h, और यहाँ पे क्या है 5.33 माइनस h है, ये कौन लिखेगा भाई, इसको एक मिनट दिखाओ। ये हुआ आपका 5.33 माइनस ऑफ h, अब बस सॉल्व करना है, यू विल गेट h 5.33 5 3 जा 15.33 इंटू 3 16 के आसपास आना चाहिए, इंटू 3 कितना हुआ 16 प्लस 5.33h माइनस 3h माइनस ऑफ h स्क्वायर इक्वल टू 16 16 16 गया, ये हो गया आपका 2.33h माइनस ऑफ h स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ h इंटू h माइनस 2.33 इक्वल टू 0। तो डेफिनेटली दो ऑरिफिस के बीच में हाइट है, राइट, तो h कांट बी 0, ओनली h कैन बी 2.33 मीटर। So definitely this will be the answer, and I hope you have learnt a lot from this question, and in next lecture I am telling you what I am solving in this, what question I am going to solve, and definitely I want that if you are coming in next lecture then please study and come. See what I am solving is, there will be one tank, right, there will be one tank, there will be one height, the tank is connected to a pump. Outside of the pump there will be one nozzle. From the nozzle there will be one jet is getting out at an angle of theta. I have to find the pumping power of the pump, ठीक है, for maximum distance traveled, I mean for the reason is for maximum कितना distance travel कर सकता है, minimum pumping power required, something like this. So what I want from you is to study and come three equations of projectile motion, especially that time of flight, maximum horizontal range and maximum height. देखिए ये तीनों इक्वेशन साइमल्टेनियस, आप अलग अलग इक्वेशंस ऑफ एक्स और वाई डायरेक्शन में जब आप सॉल्व करोगे यू विल गेट दिस। तो आई जस्ट वांट दैट यू शुड study and come this, then I will solve this question. This question is a very good and expected question, you can say, for GATE 2027, because this question carry lot of concepts.
Here pumping power concept is coming, head losses concept will be there, second projectile motion concept is there, and here Bernoulli's equation we have applied. So one question, four concepts almost applied is there. So that's why I'm saying please study and come in next lecture. Till then, study hard, okay? We will soon meet in next video.